Hello, student. Welcome again in the last unit, unit number 6. Student, in this unit, we are going to learn data access with .NET. In this technology, we are going to learn ADO.NET. Okay, this is the last unit in C# technology. Student, let us start with the concept. What is meant by ADO.NET? First of all, let's see. ADO.NET stand for, what is the long form of ADO.NET? The ADO.NET stand for ActiveX Data Object. Long form of ADO, ActiveX Data Object, and it is a major component of .NET framework. That's why this is called as a ADO.NET. इसलिए इसको ADO.NET बोला जाता है. Is a component of, no doubt, is a .NET framework part. Long form ActiveX Data Object. ओके, नाउ लेट्स सी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ADO.NET के रिगार्डिंग मैंने मेंशन किया है. ADO.NET is a set of classes, is a predefined classes that expose data access services for .NET framework programmer. .NET, ADO.NET provide a rich of set of components for creating, distributing, data sharing application. ADO.NET is a integral part of .NET framework, providing access to relational, XML and application data. ADO.NET support variety of development needs, include the creation of front-end database, client and middle tier business object used by application, tools, languages and internet browser. So these are the features of .NET, ADO.NET. Okay. Now let's see. Data access with .NET, ADO.NET overview. Student, the ADO.NET provide consistent access to data source such as SQL Server and XML, and to data source exposed through OLDB and ODBC. स्टूडेंट, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय SQL सर्वर and XML, what do you mean by OLEDB and ODBC. These are the tools. Okay. Now first of all, before going to this ADO.NET, let's see the meaning of this SQL server, XML, OLDB, ODBC and etc. SQL Server 2019. Express is a free edition for SQL Server, ideal for development and production for the desktop, web and small server application. ओके, एक SQL नाम का जो टूल है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है. थ्रू दिस टूल आप डेवलप कर सकते, प्रोडक्ट कर सकते डेस्कटॉप, वेब एंड स्मॉल सर्वर एप्लीकेशंस. XML, the XML stand for Extensible Markup Language, is a simple text-based format for representing structured information, documents, data, configuration, book, transactions,
invoices, and much more. By using this XML, you can also implement the applications. You can create your own application by using XML. OLEDB stand for Object Linking and Embedding Database. Okay, is an API. ये API है. API stand for Application Programming Interface, which is a software intermediary that allow two application to talk each other. मतलब दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इसे API यूज़ किया जाता है. तो API is one of the OLEDB, Object Linking and Embed Database. This OLEDB is also designed by Microsoft, allow accessing data from a variety of sources in a uniform manner. So this ADO is also support OLEDB. ADO.NET is also support XML. ADO.NET is also support SQL. And this ADO.NET is also support ODBC. ODBC stand for Open Database Connectivity. Is an open standard application programming interface, that is API, for accessing a database. So question is raised, what do you mean by database? अब आपको ये समझना है कि database किसको बोला जाता है. तो ये सब जो आप टूल्स देख रहे हैं, ये सब database क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है. जैसे आपने database क्रिएशन टूल्स और भी आपके जो नॉर्मली देखा है वो दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप खुद का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. ओरेकल ये एक और टूल है जिसमें आप खुद का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. डेटाबेस इज यूज फॉर बैक एंड पर्पस, मतलब जहां आप चाहते हैं कि आपका पूरा रिकॉर्ड्स, पूरी इंफॉर्मेशन आपके फाइल में स्टोर हो, दैट फाइल इज कॉल्ड एज ए डेटा बेस. और उस डेटा बेस में से आपको आपके रिकॉर्ड एक्सेस करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, SQL सर्वर, XML, OLDB, ODBC, etc. By using this concept of ADO.NET, you can retrieve the data from the database. Okay. Data sharing consumer application can use ADO.NET to connect to these data sources and retrieve, handle and update data that they contains. मतलब जो database आपने create किया है उस database में अगर आपको record write करना हो, read करना हो, maintain करना हो, update करना हो, so you can use this ADO.NET. और इस ADO.NET में नंबर ऑफ वेज है टू एक्सेसिंग द डेटा. SQL सर्वर है, XML है, OLDB है, ODBC है एंड सो ऑन. Okay, so this ADO.NET consists of classes, no doubt, that can use to connect for what? Connect, retrieve, insert, delete data in database. मतलब ADO.NET ये .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है और इसमें आपको प्री डिफाइंड क्लासेस मिलेंगी और ये प्री डिफाइंड क्लासेस के थ्रू यू कैन कनेक्ट दैट टू द डेटाबेस. यू कैन रिट्रीव, मतलब उसमें से डेटा ले सकते हो. यू कैन इंसर्ट, यू कैन डिलीट डेटा इन द डेटाबेस. All the ADO.NET classes are located in the namespace system.data.dll and integrated with XML classes located in system.xml.dll. These are the predefined namespace. ये namespace आपके प्रोग्राम में आपको इंक्लूड करना है if you want to use the database. स्टूडेंट ये ADO.NET समझने के लिए आपको
पहले कुछ डेटाबेस, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, ये कंसेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस क्रिएटिंग टूल है, उसमें आप जाके आप खुद का डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको हायर साइड में जाना है तो ओरेकल इज अगेन टूल, यू कैन क्रिएट योर ओन डेटाबेस, वहाँ पे भी आप खुद का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो कि मुझे उसमें से डेटा रिट्रीव करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ये सब प्रोसेस आपको दिए हैं। कुछ लैंग्वेजेस भी आपको साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड समझना पड़ेगा। जैसे एक लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, दैट इज SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ओके, उसी पे ADIO.NET के SQL सर्वर बनाया गया है, जहाँ आप SQL के थ्रू यू कैन रिट्रीव, you can insert, you can delete data in the database. ADIO.NET has two main components that are used for accessing and manipulating data in the database. एक है .NET Framework Data Provider and second is Data Set. These are the two major components of the ADIO.NET. Let's see one by one. First, the data provider. Data provider is used to connect to the database. मतलब data provider आपको database जो आपने create किया है, चाहे वो किसी भी tools में create किया, चाहे वो Microsoft Access हो या Microsoft Oracle हो या किसी भी tools में अगर आपने database create किया है तो उसको connect करना पड़ेगा। तो डेटा प्रोवाइडर इज ए टूल यूज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, एग्जीक्यूट कमांड एंड रिट्रीव द रिकॉर्ड फ्रॉम दैट डेटाबेस। उस डेटाबेस में से अगर आपको डेटा रिकॉर्ड रीड करना है, रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस को, एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी कमांड्स और फिर आप रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। Data provider is a lightweight component with better performance. It allows us to place data into data set to use it further in our application. मतलब अगर आपने पहले डेटा प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्शन कर लिए, ठीक है, और वो कनेक्शंस आपने कनेक्ट होने के बाद वो सब रिकॉर्ड्स आपने डेटा सेट, जो कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसमें अगर आपने इसको सेट कर दिया तो आप वो जो रिकॉर्ड्स है, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में हैं, यू कैन ईजिली रिट्रीव एंड यू कैन यूज ईजिली दैट रिकॉर्ड्स इन योर एप्लीकेशन। तो .NET data provider are the components that are designed for data manipulation and fast access to data. It provides various objects such as connection, command, data reader, data adapter that are used to perform database operation. ठीक है, तो डेटा प्रोवाइडर्स के थ्रू पहले तो कनेक्शन हो गया डेटाबेस का, फिर कमांड्स के थ्रू एक्सेसिंग कैसे करना, उसमें डेटा रीडर है, उसमें डेटा अडेप्टर है। दिस आर द सम पार्ट्स ऑफ द डेटा प्रोवाइडर। ये डेटा प्रोवाइडर के कुछ पार्ट्स है। ओके, नाउ लेट्स सी .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर। कौन कौन से डेटा प्रोवाइडर्स है .NET फ्रेमवर्क के? एक SQL सर्वर है, OLDB जो आपने भी लॉन्ग फॉर्म देखा, ODBC है, Oracle है, एंटाइटी क्लाइंट्स है, SQL सर्वर कॉम्पैक्ट 4.0 है। दिस आर द डेटा प्रोवाइडर्स। मीन्स SQL सर्वर आपने यूज़ किया, इट इज़ प्रोवाइड डेटा एक्सेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। इट रिक्वायर system.data.sql client नेम स्पेस इन योर प्रोग्राम। अगर आपको SQL सर्वर यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में तो आपको ये नेम स्पेस यूज़ करना है। अगर आपको OLDB यूज़ करना है देन यू हैव टू यूज़ द नेम स्पेस system.data.oldb। ODBC यूज़ करना है उसके लिए नेम स्पेस है
ओरेकल यूज़ करना है उसके लिए नेम स्पेस है, एंटाइटी क्लाइंट यूज़ करना है उसके लिए नेम स्पेस है, एसक्यूएल सर्वर कॉम्पैक्ट वाला यूज़ करना है उसके लिए भी नेम स्पेस है. बाय यूजिंग दिस नेम स्पेस यू कैन एक्सेस द प्री डिफाइंड क्लासेस ऑफ ADF.NET और डेटा प्रोवाइडर आप यूज़ कर सकते हैं. दिस आर ऑल थेरोटिकल पार्ट, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोग्रामिंग में कर सकते हो और यू कैन एक्सेस द डेटा विद द डेटा प्रोवाइडर. डेटा प्रोवाइडर के कुछ ऑब्जेक्ट्स स्क्रीन पर है, दैट इज कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा अडेप्टर, एक्सेट्रा. What is connection? It is used to establish the connection to the specific data source. मतलब जो डेटाबेस आपने बनाया है पहले आपको कनेक्शन करना पड़ेगा. ओके. सेकेंड स्टेप दैट इज कमांड. इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट क्यूरी, मतलब आपको कौन से रिकॉर्ड्स उसमें से एक्सेस करना है. तो SQL के थ्रू आप उसमें से रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हो, ऑल रिकॉर्ड, सेलेक्टेड रिकॉर्ड एंड सो ऑन. सो कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट क्यूरीज टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशंस. क्यूरीज मतलब ये SQL का पार्ट है, सिक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज. और क्यूरीज आप सेट कर सकते हो, मतलब जैसे अ कमांड, सपोज वी वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, देन यू हैव टू सेट द क्यूरी. आपको क्यूरी यूज़ करनी पड़ेगी. देन डेटा रीडर, इट इज़ यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स. पहले आपने कनेक्शन कर दिया, क्यूरी सेट कर दिया. देन डेटा रीडर, इट इज़ यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स. The DB data reader is a base class for all the data reader object. एक क्लास आपको बताई बेस क्लास. Then the last one is data adapter. It populates a data set and resolve update with the data source. मतलब अगर आपको डेटाबेस जो कनेक्ट हो चुका है उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो, अपडेट करना हो, then you can use this adapter to रिजॉल्व अपडेट विद द डेटा सोर्स. सो ये डेटा प्रोवाइडर के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा अडेप्टर. ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको मेंशन किया है. इसका डिटेल स्टडी आपको और भी अलग अलग बुक्स में, क्योंकि ये एक सेपरेट पार्ट है, एक इंडिविजुअल पार्ट है. अभी तक आपने सिंपल प्रोग्रामिंग करे थे, ये जो सेकंड पार्ट है ये डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोग्रामिंग है. ये एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग पार्ट है प्रोग्रामिंग का कि डेटाबेस में से आपको डेटा रिट्रीव करना है. जनरली ये कंसेप्ट क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है. क्लाइंट में मतलब आप यहाँ हैं और सर्वर कहीं और पर है, वहाँ पे आपका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा है और वहाँ से आपको डेटा रिट्रीव करना है या डिस्प्ले करना है या अपडेट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझ जाएंगे कि कॉलेज में फॉर्म भरना है या यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरना है, तो उस यूनिवर्सिटी के फॉर्म सब एक जगह कलेक्ट होंगे, दैट इज़ अमरावती यूनिवर्सिटी में, और यहाँ से मैं आप डेटा सबमिट कर रहे हो तो वहाँ आपके लिए डेटाबेस क्रिएट है. आपका जो डेटा है, जो भी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सब इन्फॉर्मेशन उस सर्वर पे जो डेटाबेस है वहाँ पे स्टोर हो जाती है. स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक आपको एक कनेक्शन कैसे करना SQL सर्वर में क्लाइंट साइड के अंदर, उसके लिए एक सैम्पल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. फर्स्ट लाइन इज यूजिंग सिस्टम, ये नेम स्पेस आपका जो कॉमन है. उसके बाद दूसरा नेम स्पेस इसमें इंक्लूड किया है system.data.sql क्लाइंट, जो इज़ अ पार्ट ऑफ SQL सर्वर. ओके, उसमें एक क्लास है प्रोग्राम नाम की, प्रोग्राम नाम के अंदर एक मेथड है मेन. ठीक, और उसमें मैंने एक कनेक्टिंग पार्ट यूज़ किया गया है, दिस वन SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू नन. मतलब पहले मैंने एक कॉन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नल है, मतलब अभी एम्प्टी है. फिर यहाँ पे मैंने एक्सेप्शनल यूज़ किया है, ट्राई, कैच एंड फाइनल. और यहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन लिखी है कि हाउ टू कनेक्ट विद द डेटाबेस. तो कॉन इज ऑब्जेक्ट, कॉन इक्वल टू,
न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल सर्वर कनेक्शन ब्रैकेट डबल कोट डेटा सोर्स इक्वल टू नेम ऑफ द डेटाबेस. Database is the name of file. Student integrated security part is SSPI. ये एक लाइन मैंने यहाँ सेट किया है कि जो डेटाबेस मुझे कनेक्ट करना है उस डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट. ये ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरा डेटाबेस, उससे मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे उसको एक स्ट्रिंग, एक लाइन, एक कनेक्टिविटी मुझे देनी पड़ेगी और उस कनेक्टिविटी का नाम है कॉन इक्वल टू, कॉन इज ऑब्जेक्ट, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन. यहाँ कनेक्शन सेट किया और जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट. ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन इज कॉन डॉट ओपन. कॉन डॉट ओपन मीन्स ये कनेक्टिविटी सेंड कर दिया, अब उसको ओपन कर रहे हैं, वो डेटाबेस को ओपन कर रहे, वो डेटाबेस जिसका नाम है स्टूडेंट. और फिर बाद में मैंने एक लाइन मैसेज प्रिंट किया, कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली. अगर सपोज यहाँ एरर है, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं है या फाइल प्रॉब्लम्स है, तो मेरा कैच और फाइनली ये मेरा ऑप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. सपोज फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वहाँ मैसेज आ जाएगा, ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग. ओके, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो मैसेज आएगा कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली. तो मैंने एक सिंपल से कोडिंग मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आप डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो. ये सब प्रोग्रामिंग पार्ट है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट है. थियोरेटिकली उतना आपको यहाँ इतना एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिकली में आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो. कनेक्शन हो गया. कनेक्शन के बाद मैं आपको इसका कमांड कमांड बता रहा हूँ. तो मैंने पहले कनेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने आपको कमांड देने, मुझे रिट्रीव करना है रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट. सीधा नेक्स्ट लाइन एसक्यूएल कमांड CM equal to new SQL command bracket double quote star select star from student. This is called as a SQL. Select star from student is called as a query. This one is called as a query. SQL sequential structure query language यहाँ पे include की गई है. Okay. So this is called as a connection. पहले connection हुआ number 1. Number 2 is command. SQL command CM equal to new SQL command and उसके अंदर मैंने SQL सेट किया है select star from student. और किसके ऊपर ये implement करना है, कॉमा करके कौन लिखा है, कौन इज ए नेम ऑफ द डेटाबेस. इस डेटाबेस पे ये क्यूरी मुझे implement करना, impose करना है. select star from student. Student is the name of database. Star means all the records. आपको ये स्टेटमेंट अगर समझ ना हो तो आपको SQL की कुछ कमांड्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी या आपको स्टडी करनी पड़ेंगी, जैसे सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट एक्सेट्रा. दिस आर द कमांड्स ऑफ SQL. तो यहाँ एक SQL इसमें इंक्लूड किया गया है और बाद में आगे ओपन कर दिया गया है. देन इन द थर्ड लाइन यहाँ पे एक रीडर लगाया गया, SQL डेटा रीडर इक्वल टू SDR. SDR इज अ ऑब्जेक्ट. CM जो मैंने फाइल ओपन किया पहले, जो मैंने कमांड सेट किया था SQL से, और उसको एग्जीक्यूट रीडर मतलब यहाँ पे उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिए स्टूडेंट नाम की डेटाबेस के ऊपर. और फोर्थ लाइन में मैंने वहाँ पे उन सब का इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दिया, console.writeLine स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का ईमेल जो मेरा डेटाबेस से मैंने उसमें से रीड किया है. नेम इज़ ए नेम ऑफ फील्ड, ईमेल इज़ ए नेम ऑफ फील्ड. उस डेटाबेस में से मुझे स्टूडेंट का नाम और उसका ईमेल प्रिंट करना है. ओके, तो मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट किया. तो इस तरह से आपने पहले कनेक्शन किया, फिर कमांड सेट किया, उसके बाद में डेटा रीडर के थ्रू आपने डेटा रीड करके उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया. सो दिस आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमांड. तो कमांड भी आप प्रोग्रामिंग के थ्रू सेट कर सकते हो. ओके, अभी आपने देखा कि मैंने प्रोग्राम के अंदर
नंबर 1 कनेक्टिविटी किया, नंबर 2 कमांड सेट किया, ठीक है। नंबर 3 मैंने यहाँ पे डेटा रीडर के थ्रू उस रिकॉर्ड को एक्सेस किया, रिट्रीव किया और स्क्रीन पे उसको प्रिंट कर दिया, मतलब चौथे पार्ट में मैंने उसको प्रिंट कर दिया। सो यहाँ पे 4 स्टेज हो गई, पहले कनेक्शन, दूसरी कमांड, तीसरी डेटा रीडर एंड फोर्थ वन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज कॉल्ड एज ए वे ऑफ प्रोग्रामिंग। यह प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो। डेटा रीडर मतलब आपने क्या क्या सेट किया, कनेक्शन, कनेक्शन के बाद कमांड, कमांड के बाद डेटा रीडर और उसके बाद मैंने आपने उसको डेटा प्रिंट कर दिया है। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट है। जब आप प्रैक्टिकली आप स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इसका और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो या ओरेकल हो, इसमें आपको समझना है, फिर बाद में आपको प्रोग्रामिंग पार्ट समझ में आ जाएगा। सेम वे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज ADO.NET डेटा सेट। ठीक है, एक प्रोवाइडर था और एक डेटा सेट है। डेटा सेट मीन्स व्हाट? इट्स अ कलेक्शंस ऑफ डेटा टेबल्स। जो एक डेटाबेस होता है उसमें नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं, अलग अलग टेबल्स होते हैं। डेटाबेस अलग है और उसमें जो टेबल्स है वो अलग है। मतलब आप एक डेटाबेस में 10 टेबल्स क्रिएट कर सकते हो या 10 से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये आपको पहले समझना है कि व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस एंड व्हाट डू मीन बाय टेबल। ये अगर आपको समझना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ बेस्ट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस एंड व्हाट डू मीन बाय टेबल। सो दिस डेटा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स दैट कंटेन डेटा, नो डाउट। हर टेबल्स के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया कॉलेज के लिए, तो मैंने स्टूडेंट एक टेबल बनाया, उसके बाद टीचर्स का एक टेबल बनाया, स्कॉलरशिप का एक टेबल बनाया, फीस का एक टेबल बनाया। तो एक डेटाबेस में RLT नाम का डेटाबेस है, उसमें नंबर ऑफ टेबल्स है और टेबल के अंदर डेटा है, नो डाउट। इट इज़ यूज टू फेच डेटा विदाउट इंटरेक्टिंग विद द डेटा सोर्स, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसकनेक्टेड data access method. This is another way to access the data from the database by using the data set concept. You can use data relation object to relate these tables. Relation mention कर सकते हो, 1 to 1, 1 to many। ये कुछ relations जो है आप टेबल पे सेट कर सकते हो, या मतलब या 2 या 2 से ज़्यादा टेबल में कनेक्टिविटी सेट कर सकते हो। जैसे उसमें जो कॉमन यूनिक फील्ड होंगे उसके थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको और डिटेल स्टडी करना पड़ेगा बाय यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसमें दिया है क्यूरी, दिया है वहाँ कनेक्टिविटी दिया है, टेबल रिलेशंस दिया है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट द टेबल्स दिया है, हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस दिया है। ये अगर आप सिंपल अगर समझना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक टूल है, उसमें आप उसको और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। द डेटा सेट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीड राइट डेटा एज XML document. ADO.NET provide data set classes that can be used to create data set object. It contain constructor method to perform data relation operations. Okay, data set एक क्लास है तो इसमें कंस्ट्रक्टर भी मिलेंगे आपको, मेथड्स भी मिलेंगे प्री डिफाइंड। बाय टू यूज this predefined constructor or predefined methods to access the record from the table. कुछ मैंने सैम्पल्स यहाँ पे दिए हैं कंस्ट्रक्टर के, मतलब ये बताया कि कंस्ट्रक्टर है, मेथड्स है, प्रॉपर्टीज़ है डेटा सेट की जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने कुछ सैम्पल्स यहाँ दिए, इसमें और भी है लेकिन कुछ सैम्पल दिए। डेटा सेट इज़ ए कंस्ट्रक्टर, डेटा सेट विथ parameter is a constructor, data set is name of the class, or data set is a constructor. The name of the class and name of the method is same, is called as a constructor. So this first constructor data set is used to initialize new instance for the data set class. Okay, फिर दूसरा है इसमें डेटा सेट विथ पैरामीटर है, ये भी आपको कंस्ट्रक्टर है विथ पैरामीटर, ये भी यूज़ कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, केस सेंसिटिव, data set name, it is used to set or get or set the name of the current data set and so on.
कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं और कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स भी है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने 2-3 मेथड्स आपके सामने दिया है। बिगिन, इनिशियलाइजेशन, क्लियर, क्लोन, कॉपी। The copy, it is used for both structure and data for the data set. It is used to copy the structure of data set. Clear, it is used to clear the data set of any data by removing all the rows in the tables. So these are the predefined methods, predefined constructor, predefined property of the data set class. दो मेथड्स है ADO.NET के, पहले जो मैंने बताया एक डेटा प्रोवाइडर और दूसरा बाय यूजिंग डेटा सेट। ओके, नाउ लेट्स सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा अडप्टर एंड डेटा टेबल। डेटा अडप्टर वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन डेटा सेट एंड द डेटा सोर्स रिट्रीव डेटा। ओके, मतलब जब डेटा सेट आप यूज़ करेंगे तो उसमें आप डेटा अडप्टर यूज़ करना पड़ेगा। Data adapter is a class that represents a set of SQL commands and a database connection. It is used to fill data set and update the data source. ADO.NET data tables. Data tables represent the relational data into a tabular form. जो tables होते हैं वो tabular forms में होते हैं, मतलब उसमें rows and columns होंगे। ADO.NET provides a data table access to create and use data tables independently. It can also use with data set also. Initially, when we create a data table, it does not have table scheme. When we create a table scheme by adding columns and the constraints to the table, after defining the table schema, we can add rows to the टेबल्स। मतलब ये टेबुलर फॉर्म में है टेबल्स, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जो फर्स्ट रो होती है इन एनी टेबल इज कॉल्ड एज ए फील्ड्स, और उसके नीचे उसमें आप रिकॉर्ड्स या रोज ऐड कर सकते हो। ये सब कंसेप्ट अगर आपको समझना हो तो मैंने अभी पहले भी बताया कि आप पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है ये समझ लो, उसमें टेबल डेटाबेस क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, क्यूरीज क्या है, रिलेशन क्या है, ये आपको थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स उसमें आपको समझना है। ओके, तो ये दिस आर द सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6, दैट इज हाउ व्हाट डू मीन बाय ADO एंड हाउ टू यूज द ADO इन द प्रोग्रामिंग, C# प्रोग्रामिंग। ठीक, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट इसमें प्रोवाइड करूँगा। टिल देन द स्टॉप टुडे।